محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ ساتواں حصہ، ہجرت سوئے مدینہ۔ 15واں باب، رہ نورد شوق، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ چرواہا بکریوں کو ہنکاتا ہوا خیموں کی طرف جا رہا تھا۔ بکریاں بہت کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھیں، ان کے تھن خشک پڑے تھے۔ ایک بکری کو جو بمشکل اپنی کمزور ٹانگوں کو گھسیٹ رہی تھی، اپنی لاٹھی سے ڈھکیلتے ہوئے وہ بڑبڑایا، یہ سال تو بس یوں ہی گزر گیا، یہ سوکھی بکریاں کسی کام کی نہیں رہیں، اب گھر میں بھی کچھ نہیں ہوگا، معبد بھی بھوکی بیٹھی ہوگی۔ اس نے آسمان پر نگاہیں اٹھائیں، لاٹھی سے ٹیک لگائے آسمان کو تکتا رہا اور سوچتا رہا۔ جب اس کے پیر پر چونٹیاں چڑھ گئیں اور ایک چونٹی نے کاٹ کھایا تو وہ چونکا، پیر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھا۔ سوکھی مریل بکریاں خیمے میں داخل ہو رہی تھیں اور چرواہا گھر میں جاتے ہوئے ڈر رہا تھا، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں تھا اور اس کی بیوی بڑی زبان آور تھی۔ مگر جب وہ اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا اور اس کی بیوی معبد بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ساحل کے کنارے کنارے مدینے کو جانے والے مسافر ٹیکرے والے سیاہ خیموں کو خوب پہچانتے تھے۔ یہ معبد قضائیہ کے خیمے تھے۔ معبد ایک توانا اور نیک عورت تھی۔ اس کی اور اس کے شوہر کی گزران صرف بکریوں کے دودھ پر تھی۔ غریب، مگر اللہ نے دل بڑا غنی دیا تھا۔ جو مسافر اور کارواں بھی اس راہ سے گزرتا وہ ان کی خدمت کرتی، پانی، کھجوریں، دودھ، جو کچھ بھی میسر ہوتا وہ مسافروں کے سامنے لا کر رکھ دیتی۔ مسافر کھا پی کر آرام کر کے آگے چلے جاتے۔ ان کے اطمینان و سکون کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی۔ یہی اس کی میزبانی کا اجر تھا۔ اسے فخر تھا کہ اس کے گھر سے مسافر کبھی مایوس نہیں گئے۔ مگر اس دن گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اس کا شوہر سوکھی مریل بکریوں کو چرانے گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک بکری بندھی ہوئی تھی جس کے تھن عرصے سے سوکھے پڑے تھے اور وہ بس مرنے کے قریب ہو گئی تھی، اور معبد خیمے کے صحن میں بیٹھی حیرانی سے ان چاروں مسافروں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی سواریوں سے اتر کر اس کے خیمے کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے کپڑے گرد آلود تھے اور سواریاں تھکی ہوئیں۔ وہ یقیناً بڑی طویل مسافت طے کر کے آ رہے تھے۔ سامان خورد و نوش بھی ساتھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ یقیناً یہ بھوکے پیاسے ہوں گے۔
मगर आह, इनके लिए क्या किया जाए। उसने बड़ी हसरत से अपनी बकरी को देखा जो कभी सैरों दूध देती थी, मगर अब बूढ़ी और लाग़र हो गई थी। अभी वो इन ख्यालों में थी कि वो मुसाफिर उसके खैमों तक पहुंच गए। उनमें से एक ने उससे पूछा, उम्मे माबद, क्या कुछ दरपेश है? उसने कहा, आपकी मेजबानी के लिए तहीदस्त हूं। खुर्दोनोश की कोई शय मौजूद नहीं। पूछने वाले ने उस बकरी की तरफ देखा जो एक तरफ बंधी हुई थी और औरत से पूछा, उम्मे माबद, ये बकरी कैसी है? उम्मे माबद ने अर्ज किया, कमजोरी के बाइस ये बकरी रेवड़ के साथ नहीं जा सकी। इसके दूध है? नहीं, इसका दूध खुश्क हो चुका है। अब तो ये इस मरहले से गुजर चुकी है। इस मुख्तसर से काफले के सरदार ने कहा, क्या तुम मुझे इसका दूध दोहने की इजाजत दोगी? उम्मे माबद ने कुछ हैरत से मगर उसी अखलाक से जो उसका शेवा था अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों। अगर आपको दूध मिल सके तो बेशक दोह लें। मुसाफिर ने बढ़कर उसके थन पर हाथ फेरा, कुछ जेर लब दुआ की और अल्लाह का नाम लिया और पलटकर उम्मे माबद से बर्तन मांगा। जब बर्तन देते हुए उसकी नजर बकरी के थनों पर पड़ी तो वो हैरत से चौंक पड़ी। अरे अल्लाह, ये तो दूध से भरे हुए हैं। उस मुसाफिर ने, जिसको देख कर उम्मे माबद हैरान हो रही थी, जो उसे इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता मालूम होता था, बर्तन में दूध निकाला, यहां तक कि झाग बर्तन पर चढ़ा आया। मेहमान ने वो दूध अपनी मेजबान को दे दिया। उम्मे माबद ने वो दूध पिया और सैर हो गई। उसे याद नहीं पड़ता था कि कभी उसने इससे ज्यादा लजीज दूध पिया हो। फिर उसने अपने साथियों को बुलाकर दूध पिलाया। इन तीनों ने भी पेट भरकर दूध पिया। सबके बाद उसने भी सैर होकर दूध पिया। उसके बाद उसने बर्तन भरकर और दूध निकाला और वहां रख दिया। अबू माबद जब घर में दाखिल हुआ तो उसने हैरत से दूध भरे बर्तन को देखा। ये कहां से आया? बकरी तो खुश्क थी और घर में दूध भी नहीं था। उम्मे माबद ने कहा, अल्लाह की कसम, हमारे हाथ से आज एक मुबारक इंसान का गुजर हुआ, जिसके हाथ लगाने से ए अबू माबद हमारी बकरी के थन दूध से भर गए। अल्लाह की कसम, तुम पीकर तो देखो कितना शीरीं और कितना लजीज दूध है। बनी कनाना की बकरियों से भी ज्यादा शीरीं। अबू माबद ने दूध पिया और हैरान रह गया। दूध वाकई ऐसा ही था जैसा कि उसकी बीवी ने बताया था। दूध पीकर उसने बड़ी मोहब्बत से अपनी बकरी पर हाथ फेरा, फिर मुंह साफ करते हुए बीवी से पूछा, अरे बता तो सही, वो कौन मुबारक मुसाफिर थे जो इस खुश्क बकरी को तरो ताजा कर गए? बीवी ने जो तफसील बयान की तो अबू माबद बोल उठा, कसम खुदा की, ये वही आदमी है जिसे खुरैश के लोग
तलाश कर रहे हैं। ए उम्मे माबद, मैं तो बेकरार हो रहा हूं। तुम अपने जोर बयान से हर बात का नक्शा खींचकर रख देती हो। जरा वजाहत से उनका हुलिया और उनकी चाल ढाल तो बयान करो, मैं भी तो जानूं वो कैसे थे। शौहर की इस तारीफ पर उम्मे माबद खुश हो गई। उसका ज़ौक़ बयान उभर आया और वो अपने कबीले के रिवायती अंदाज में, जो फसाहत व बलागत से पुर था, बोलने लगी। पाकीज़ा रो, ताबा और कुशादा चेहरा, खुश वज़ा सर, ज़ेबा कामत, साहबे जमाल, आंखें सियाह व फराक, बाल घने सियाह और घुंघरियाले, आवाज जानदार और कुछ ऐसी कि खामोश हो जाएं तो विकार छा जाए और कलाम फरमाए तो फूल झड़ें। रोशन दमक सुरमगई चश्म, बारीक को पेवस्ता अबरू, दूर से देखने में दीदा वो दिल फरेब, करीब से देखो तो कमाले हसीन, शीरीं कलाम वाज़े बयान, अल्फाज की कमी बेशी से पाक, बोले तो मालूम होता कलाम क्या है। परोई हुई लड़ियां हैं जो तरतीब और आहंग से नीचे गिरती जा रही हैं। मयाना खत के देखने वाली आंख पस्ता कदी का ऐब नहीं लगा सकती, ना तवील के नजरों में तवालत खटके। सरापा दो शाखों के दरमियान तरो ताजा हसीन शाख की तरह जीबंदा और खुश नजर, जिसके रफीक परवानावार गिरदो पेश रहते हैं। जब वो कुछ कहता है तो चुपचाप सुनते हैं और जब हुक्म करता है तो तामील के लिए दौड़ पड़ते हैं। मखदूम व मता, न तंग नजर, न बेमगज, न कोताह सुकन, न फजूल गो। अबू माबद जैसे जैसे अपनी बीवी की जबानी सुनता जा रहा था, जोशे इश्तियाक से उसका चेहरा तमतमाता जाता था। जब वो कह चुकी जो उसे कहना था तो अबू माबद बेसाख्ता बोल उठा। अल्लाह की कसम, यही वो आदमी है जिसके मुताल्लिक कुरैश बातें करते हैं। उम्मे माबद ने ठिठक कर सवाल किया, तुम हर बात उलझी हुई करते हो, मुझे भी तो बताओ कि ये कौन थे और कुरैश उनके मुताल्लिक क्या बातें करते हैं। आहिस्ता उम्मे माबद, आहिस्ता, उसके शौहर ने इधर उधर देखते हुए उसे चुप कराया। अरे अगर कोई सुन लेगा तो वो उनके नक्शे कदम पा जाएगा। आखिर ये कौन थे? उम्मे माबद ने धीरे लहजे में पूछा। वो अल्लाह के रसूल थे उम्मे माबद, अल्लाह के रसूल। कसम खुदा की वो हमारे घर आए और हम उनसे बेखबर थे। मैंने इरादा कर लिया है कि मैं उनका साथी बन जाऊंगा, जिधर वो जाएंगे मैं भी जाऊंगा। तू देख ले, अगर मुझसे हो सका तो मैं ये काम करके दिखा दूंगा। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।
किरण उजाला